Hello students, good morning. Students, in the last week we have taken a test on chapter number 1, that is computer fundamental. Now today we are going to revise our second chapter, that is input and output devices. We are going to do revision of this chapter, and based on this chapter today itself I am forwarding you the worksheet. You have to solve that worksheet, and based on the worksheet on Saturday we are going to conduct a test on second chapter. Okay, so let us first revise the chapter. After that, after seeing the video of this chapter, you have to solve the worksheet of this chapter. Okay, so moving forward with the input and output devices. So two contents are there in this chapter, that is input and output devices. Going with the first, that is input devices. What is meant by input devices? As I told you earlier, that input devices means that to give something to the computer, to type something inside the computer, to give some kind of input to the computer, दैट इज़ नोन एज द इनपुट. ओके, मतलब कंप्यूटर के अंदर हम कंप्यूटर में हम कुछ तो भी लिखते हैं या कुछ ड्रॉ करते हैं. ओके, तो इस टाइप की चीज़ों को क्या बोलते हैं हम लोग? इनपुट डिवाइसेस. सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस इन our computer, connected with our computer, such as keyboard, mouse, scanner, joystick, microphone, light pen, web camera, digital camera, trackball, touchpad and touch screen. So these are the input devices जिसकी वजह से हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? इनपुट देते हैं. So let us see all of them one by one. Going with the keyboard now. You all know that why keyboard is used for giving input to the computer. मतलब इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर के अंदर वर्ड्स टाइप कर सकते हैं, नंबर्स टाइप कर सकते हैं. ओके, सो कंप्यूटर के अंदर अगर कुछ लिखना हो या कुछ टाइप करना हो, उसके लिए क्या यूज़ होता है? कीबोर्ड यूज़ होता है. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस इज़ अ माउस. जैसे आपको पेंट के अंदर स्क्वायर बनाना है या स्माइली बनाना है, कार बनानी है, तो आपको वो सब किसके थ्रू करना होता है? कीबोर्ड चलता है क्या उस वक्त? नहीं. आपको किसकी ज़रूरत गिरती है? व्हाट यू रिक्वायर अ माउस. सो माउस इज़ अ काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ड्रॉ पिक्चर ऑन द स्क्रीन. ओके, वी कैन ड्रॉ पिक्चर with the help of mouse. Now you know that there are two buttons on the mouse, that is right button and a left button, and one is the scroll wheel at the center. Okay, तो ये माउस क्या करते हैं? हमें कुछ ड्रॉ करने को हेल्प करते हैं या कोई फाइल्स ओपन करने के लिए भी हमें माउस हेल्प करते हैं. नाउ इन कंप्यूटर ना देयर आर टू टाइप्स ऑफ माउस वी कैन कनेक्ट टू कंप्यूटर. First one is the optical mouse and next one is the mechanical mouse. The mouse which you are seeing with a white color, that one is a mechanical mouse, and the mouse which you are seeing in a black is a optical mouse. Now next type of input device is scanner. What does scanner do, or why scanner is used? The scanner is used to scan your text or image on a printed page. स्कैनर क्या करता है? आपके पेज के ऊपर, जैसे कि ये पेज है, इसके ऊपर क्या है? फ़ोटो है. आपके पेज है, मैंने पेज का क्या किया? मोबाइल में फ़ोटो लिया मतलब क्या किया? इसको स्कैन किया. ओके, तो स्कैनर का काम क्या है कि जो भी आपकी बुक है या जो कुछ भी है, उसको क्या करना? उसके अंदर की फ़ोटोज़ निकाल के, उसके अंदर की प्रिंट निकाल के, उससे क्या करना? कंप्यूटर के ऊपर या मोबाइल के ऊपर डिस्प्ले करना. सो दिस थिंग इज़ डन बाय यूजिंग स्कैनर. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस इज़ अ जॉयस्टिक. जॉयस्टिक ना एक पॉइंटिंग डिवाइस है विच इज़ मोस्टली यूज फॉर प्लेइंग गेम्स. किस लिए यूज़ होता है जॉयस्टिक? फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑन अ कंप्यूटर द जॉयस्टिक इज़ यूज. और ये जॉयस्टिक गेम खेलते वक्त ना पूरी 360 डिग्री में रोटेट करता है, मतलब पूरा गोल घूम सकता है. आई हैव एक्सप्लेन दिस इन डिटेल इन द प्रीवियस वीडियो. तो आप देख सकते हो उसके अंदर कि जॉयस्टिक इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज फॉर प्लेइंग गेम and it can move in all the direction, and there are buttons as well as trigger on the joystick. Next one is the microphone.
माइक्रोफोन ना, दिस वन इज़ द इनपुट डिवाइस, और ये माइक्रोफोन क्या करता है ना, हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड करता है और फिर क्या करता है, हमारी आवाज़ या जो बाहर की कोई और साउंड होगी उसे क्या करता है, ये रिकॉर्ड करता है। एंड इट हेल्प, द माइक्रोफोन हेल्प अस फॉर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। जैसे कि मैं अभी अपनी आवाज़ क्या कर रही हूँ, इस वीडियो के अंदर रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब ये आवाज़ कैसे रिकॉर्ड हो रही है, विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोफोन। और आप ये किसके थ्रू सुन सकते हो, थ्रू अ वीडियो, जो कि किसके ऊपर है, इंटरनेट के ऊपर है। ओके, ऑन अ, जो कि इंटरनेट से रन हो रहा है ऑन अ यूट्यूब। Okay, so I hope here you understood that what is a microphone. Now moving further with next type of input device, that one is a light pen. Now लाइट पेन इज ऑल्सो नोन एज अ पॉइंटिंग डिवाइस। लाइट पेन भी क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस विच इज़ यूज टू ड्रॉ लाइन्स और इमेजेस डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। लाइट पेन से जैसे हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं ना टाइपिंग के लिए, वैसे आप जैसे आप नोटबुक में लिखते हो, वैसे ही लाइट पेन भी किस लिए यूज़ होता है, डायरेक्ट अगर आपको कंप्यूटर के ऊपर कुछ लिखना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, वी कैन मेक यूज़ ऑफ लाइट पेन। यू कैन राइट टेक्स्ट एज वेल एज यू कैन ड्रॉ इमेजेस विद द हेल्प ऑफ लाइट पेन। Okay, now light pen, as you move your hand, the light pen will move according to your wish. And the mouse, with the help of mouse this is not possible. The light pen is a device with the help of light pen you can draw or you can write a text, but ये पेन जो माउस है आपका, ये माउस की तरह वर्क नहीं करता है, या ये माउस नहीं है, माउस वर्क somewhat differently. Now next type of input device is a web camera. अभी वेब कैमरा आप सबको पता होगा, जब मोबाइल से सेल्फी निकालते हो तो क्या करते हो, आपका फ्रंट कैमरा ऑन होता है। द सेम थिंग इज नोन एज अ वेब कैमरा विच इज़ यूज फॉर रिकॉर्डिंग अ वीडियो और विच इज़ यूज फॉर taking a image is known as a web camera. Even you have seen a web camera in our school in a computer lab. वेब कैमरा क्या करता है, हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं उसे रिकॉर्ड करता है और फिर किसके ऊपर दिखाता है, वो on a bigger screen. Like it is used for, mostly a web camera is used for video conferencing over internet. Now next type of input device is a digital camera. Digital camera in the sense we can say दिस कैमरा कैप्चर एंड स्टोर इमेजेस इन अ डिजिटल फॉर्म। मतलब ये क्या करता है, आपका फ़ोटो निकालता है और क्या करता है, आपका फ़ोटो को क्या करता है, खुद के अंदर रखता है। जैसे कि आपके फ़ोन के अंदर कैमरा है, कैमरा से आपने फ़ोटो निकाला तो आपको तुरंत वो फ़ोटो देखने मिलता है कि नहीं, देख सकते हो ना। सो दिस कैन बी डन इन अ डिजिटल कैमरा। अभी ये जो भी आप इमेज ले रहे हो, ये आप क्या कर सकते हो, you can store this image in your phone memory or in a memory card or any other device. Even you can see the image that you have taken in digital camera. You have a advantage that you can view the photo after clicking on your camera screen. Now next type of input device is a trackball. Now trackball can be called as a inverted mouse. Inverted mouse मतलब ये ना उल्टा होता है, उल्टा दिखता है, हमें माउस की तरह ही दिखता है, बट इसके ऊपर जो आपको ये बॉल दिख रहा होगा रेड कलर का, ये बॉल क्या है, ऊपर है। अभी माउस चलाने के लिए आपको क्या लगता है, लेफ्ट और राइट बटन माउस के लगते हैं, बट फॉर यूजिंग दिस ट्रैक बॉल व्हाट यू रिक्वायर, ये भी वर्क सेम माउस के जैसे ही करता है, बट ये क्या करता है ना, वर्क कैसे करता है, इसके ऊपर बॉल दिख रहा है ना, आपको ये माउस को राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करने की ज़रूरत नहीं होती, लाइक यू डू विद अ नॉर्मल माउस। इसे क्या करना होता है, जस्ट ये ट्रैक बॉल के ऊपर ये जो रेड कलर का बॉल है ना, आपको इसे लेफ्ट राइट अप डाउन 360 डिग्री आपको मूव करना है, और जहाँ आप चाहो वो क्या करेगा, वहाँ पे पॉइंट करेगा ना। नेक्स्ट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस इज़ अ टच पैड। अ टच पैड इज ए इनपुट डिवाइस जो कि कहाँ पे होता है, इट इज़ मोस्टली बिल्ट ऑन अ लैपटॉप। कहाँ पे होता है टच पैड, ऑन अ लैपटॉप, एज यू कैन सी इन अ फिगर कि लैपटॉप कहाँ पे, टच पैड कहाँ पे होता है, ऑन अ लैपटॉप। और टच पैड कैसे काम करता है, टच पैड वर्क्स विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर। आपके फिंगर को क्या करता है, टच पैड सेंस करता है, और जिस डायरेक्शन में हम हमारा फिंगर टच पैड के ऊपर मूव करते हैं, उसी डायरेक्शन में क्या होता है, आपका जो मॉइस पॉइंटर होता है वो मूव करता है। नाउ नेक्स्ट टाइप एंड द लास्ट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस इज अ टच स्क्रीन। अभी
टच स्क्रीन आप सबको पता है, इवन आप जिस मोबाइल के ऊपर अभी वीडियो दिख रहे हो वो भी क्या है, टच स्क्रीन का मोबाइल है। जो टच स्क्रीन, हमें टच स्क्रीन के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे कि अभी कंप्यूटर लैपटॉप्स भी बहुत सारे निकले हैं जिसे आप टच करके आपके फाइल्स वगैरह ओपन कर सकते हो। इवन योर मोबाइल फोन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ टच स्क्रीन, योर एटीएम्स आर द एग्जाम्पल ऑफ टच स्क्रीन। टच स्क्रीन मतलब जिसको छू के आप एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो, उस टाइप के इनपुट डिवाइस को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज अ टच स्क्रीन। Okay, so here we finish our input devices. Now moving further with the output devices. आउटपुट डिवाइसेस मतलब क्या होता है कि जिस डिवाइस की हम कॉपी ले सकते हैं पेपर के ऊपर या कोई और हार्ड डिवाइस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस में हाउ मेनी टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर देयर? द आउटपुट डिवाइसेस आर प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर एंड हेडफोन्स। और आउटपुट डिवाइस मतलब क्या? जिसका रिजल्ट एक पेपर के ऊपर डिस्प्ले हो सकता है, इस टाइप के डिवाइस को हम क्या कहते हैं, या जो हमें आउटपुट दे सकता है, इस टाइप के डिवाइस को हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस इज अ प्रिंटर। प्रिंटर इज अ आउटपुट डिवाइस दैट जनरेट्स हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी मतलब क्या करता है ये प्रिंटर? आपके जो कंप्यूटर के अंदर फाइल होगी, जैसे कि पेंट की फाइल है, आपने पेंट के अंदर कुछ ड्रॉ करके रखा है, तो उसका आउटपुट हमें किसके ऊपर देता है? ऑन अ पेपर। और वो कैसे मिलता है हमें? विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर। नाउ the printer are of three types. First one is dot matrix printer, second one is inkjet printer, and third one is a laser printer. अभी ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ना, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, मैंने पहले भी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फॉर मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो एज वेल। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ना, इसके अंदर एक पिन होती है, जैसे कि हमारी नीडल होती है ना, वैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर क्या होती है? एक पिन होती है। और जब भी हम अपना टेक्स्ट जब भी राइट होता है पेपर के ऊपर, आफ्टर गिविंग द कमांड फॉर प्रिंट, जब भी वो मूव होता है, जब भी प्रिंटिंग आती है, तो क्या करता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के ऊपर जो भी पिन होती है ना, वो उसके ऊपर स्ट्राइक करती है मतलब होल्स क्रिएट करती है, और क्या करती है, हर एक अल्फ़ाबेट को क्या करती है, प्रिंट करती है। बट द क्वालिटी जो डॉट मैट्रिक्स की प्रिंटर की होती है ना, वो अच्छी नहीं होती, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के ऊपर जब भी आप कोई प्रिंटिंग करते हो ना, तो बहुत आवाज़ करता है। Now, next type of printer is a inkjet printer. Now, what does a inkjet printer do? An inkjet printer sprays ink on a sheet of paper forming characters. क्या करता है inkjet printer? कि जो भी कलर है या जो भी है आपके इंक लगती है, हमें जो भी इंक लगती है, उसे क्या करता है, स्प्रे करता है पेपर के ऊपर, और उस बेसिस के ऊपर वो क्या करता है, हमारे पेज के ऊपर जो भी टेक्स्ट है या जो भी ड्राइंग्स है, जो भी ग्राफिक रिलेटेड इमेज है, उसे क्या करता है, प्रिंट करता है। और जो ये इंकजेट प्रिंटर है, इसकी क्वालिटी कैसी है? बहुत अच्छी होती है दैन अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ओके, नाउ next type of printer is a laser printer. Now this type of printer, laser printer, you might have seen in the office, in our principal's office. laser क्या करता है ये laser printer? A laser printer deflects the laser beam on a photosynthesis surface to print character. मतलब क्या करता है ना ये लेज़र प्रिंटर, लेज़र बीम, इसके अंदर क्या होती है, लेज़र बीम, उससे क्या करता है, आपके जो शीट है, आपका जो पेपर है, उसके ऊपर क्या करता है, 1 by 1 कैरेक्टर प्रिंट करता है। और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि प्रिंट भी आपको बहुत अच्छी मिलती है। और एंड दिस प्रिंटर आर वेरी एक्सपेंसिव, मतलब इनकी कॉस्ट भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस इज़ अ मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? तो अ मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट रिसेम्बल्स अ टेलीविजन। मतलब क्या? मॉनिटर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो कि किसकी तरह है, टेलीविजन की तरह, टीवी की तरह है। अभी मॉनिटर के भी ना बहुत सारे टाइप होते हैं, लाइक फर्स्ट वन इज द CRT, देन LCD, देन OLED मॉनिटर। So going with the first type of monitor, that one is CRT monitor. We also call this as a cathode ray tube. Full form क्या है CRT का? Cathode ray tube. So
Earlier CRT monitor were most commonly used. They are bulky and consume a lot of power. मतलब क्या, ये कैथोड रे ट्यूब, ये जो मॉनिटर है ना, इसके साइज आप देख सकते हो इमेज में, बहुत बड़ी है। मतलब क्या है, बहुत हेवी होंगी, इससे आपको समझ में आ रहा है। और इसको क्या लगती होगी, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी लगती होगी। तो ये मॉनिटर क्या थे ना, ये मॉनिटर बहुत कॉमनली यूज़ होते थे पहले के दिनों में, पर इनकी साइज़ क्या थी, बहुत बड़ी थी। और इन्हें क्या था, इन्हें बहुत ज़्यादा पावर लगती थी, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे। सो आफ्टरवर्ड्स केम द एलसीडी मॉनिटर, फुल फॉर्म इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। Now, LCD monitors are lighter and thinner than CRT monitor. LCD monitor क्या है, वेट में क्या है, कम है, किससे, सीआरटी मॉनिटर से। आपने एलसीडी मॉनिटर देखे हुए हैं इन आवर कंप्यूटर लैब, और इनका वेट सीआरटी मॉनिटर से कम है, इसलिए ये क्या करते हैं, लेस पावर लेते हैं। लेस पावर मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करते, और हमें क्या बताते हैं, क्लियर इमेजेस बताते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। ओके, नाउ next type of monitor and the last type of monitor is a OLED monitor, also called as organic light emitting display. OLED monitor are thinner and brighter than LCD monitor. जो आपका लास्ट टाइप का मॉनिटर है ना, OLED मॉनिटर, ये क्या है, बहुत ज़्यादा थीनर है। थीन मतलब बहुत ज़्यादा पतला है। किससे पतला है, एलसीडी मॉनिटर से। और इसकी जो क्लैरिटी है, इसका जो डिस्प्ले है, इमेज डिस्प्ले करने का जो है, वो क्या है, एलसीडी मॉनिटर से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और क्या करता है ये ओएलईडी मॉनिटर, ये क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी देने के वजह से क्या है, ये लेस पावर भी कंज्यूम करता है, मतलब बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी ओएलईडी मॉनिटर को लगती है। Now moving further with next type of output device, that one is a projector. अभी प्रोजेक्टर आप सबने, हर किसी ने देखा हुआ है इन अ कंप्यूटर लैब वाइल टीचिंग, वी यूज़ अ प्रोजेक्टर फॉर टीचिंग। ओके, तो आप लोगों ने लैब में प्रोजेक्टर देखा हुआ है। तो प्रोजेक्टर क्या होता है, अ प्रोजेक्टर इज यूज टू प्रोजेक्ट द आउटपुट ऑन अ लार्ज स्क्रीन सो दैट इट कैन बी साइमल्टेनियसली व्यूड बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। अभी मुझे आप सबको अगर टीचिंग करानी होगी एक साथ प्रैक्टिकली, तो कैसे कराऊंगी, मैं प्रोजेक्टर का यूज़ करूंगी। उस वक्त मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन यूज़ अ प्रोजेक्टर, और वो प्रोजेक्टर के ऊपर, प्रोजेक्टर के थ्रू मैं क्या करूँगी, जो भी मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन है ना, उसे मैं शेयर करूँगी, उसे मैं डिस्प्ले करूँगी ऑन अ वाइट बोर्ड। और उसके ऊपर डिस्प्ले करने से जो भी कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन पे हो रहा है, वो सब आपको कहाँ दिखेगा, ऑन दैट वाइट बोर्ड। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को क्या होगा, एक साथ हमें बहुत सारी चीज़ें बताते आएंगी। ओके, नाउ so here I hope that you have understood that what is a projector. Now moving next with a speaker. अभी स्पीकर क्या होते हैं, तो स्पीकर आप सबने देखे होंगे एट द टाइम ऑफ दिवाली, एट द टाइम ऑफ संक्रांत। ओके, क्या होते हैं, छत के ऊपर स्पीकर वगैरह लगाते हो फॉर हियरिंग म्यूजिक, फॉर हियरिंग साउंड। ओके, सो स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस, और ये किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज फॉर हियरिंग लिसनिंग अ म्यूजिक ऑन अ कंप्यूटर, for listening a music through a computer or through a mobile and many more devices. तो स्पीकर बेसिकली किस लिए यूज़ होते हैं, फॉर हियरिंग अ म्यूजिक, एंड इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। Now last type of output device is a headphone. So headphone are mainly used by individual to listen to music or sound from the computer without disturbing others. अभी स्पीकर अगर आपने लगाया, तो स्पीकर के अंदर से जो स्पीकर के बाहर जो भी आवाज़ आएगी, वो क्या होगा, बहुत सारे लोग एक साथ सुन सकेंगे। पर आपको क्या है, अकेले को गाना सुनना है, तो आपको किसका यूज़ करना होगा, यू हैव टू यूज़ अ हेडफोन। सो हेडफोन क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अगर आपको अकेले गाना सुनना है फ्रॉम अ कंप्यूटर और फ्रॉम अ मोबाइल, यू कैन हियर इट विद द हेल्प ऑफ हेडफोन। और बहुत सारे हेडफोन अभी ऐसे भी आते हैं जिनको क्या कनेक्टेड होता है, माइक्रोफोन जो मैंने आपको अभी बताया ना, माइक्रोफोन कनेक्टेड होता है। तो इस टाइप के हेडफोन को हम क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ हेडफोन्स आर नोन एज हेडसेट्स। क्या बोलते हैं इस टाइप के हेडफोन को, हेडसेट्स। और ये बेसिकली यूज़ होता है फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। किस लिए यूज़ होता है, फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब
एक साथ बहुत सारे लोगों को अगर कुछ आपको बताना है थ्रू अ कंप्यूटर ऑनलाइन जाके, तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं? वी कैन यूज़ दिस हेडसेट फॉर communication. So here students, we have finished the revision of our second chapter, that one is input and output devices. Go through the videos properly and solve the worksheet by seeing it in the notes, and in next period on next Saturday we are going to have a test on this chapter, that is 11. On 11 we are going to have a test on of this chapter based on the worksheet. और अगर आपको डिटेल में ये चैप्टर समझना है तो यू कैन व्यू द प्रीवियस वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है. ओके, सो थैंक यू, एंड सॉल्व द वर्कशीट प्रॉपरली बाय सीइंग इन द नोट्स.